So, today we are going to revise optical instruments and we are going to revise quickly the important derivation of optical instruments for semester 2 exam. And in optical instruments, the most important derivation is magnification formula for simple microscope, compound microscope and telescope. We are starting with simple microscope. Simple microscope is a convex lens of small focal length, important point. Now, magnification of an optical instrument is defined as the angle subtended by image on the eye divided by angle subtended by object over the eye. तो जो इमेज सबटेंड करेगी अगर वो एंगल बड़ा होगा तो हमें ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा. तो कितना बड़ा किया इमेज के एंगल को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने, दैट विल बी द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. अब हम इन दोनों एंगल्स को कैसे देखेंगे, कैसे मेजर करेंगे. सबसे पहले ऑब्जेक्ट को नेकेड आई से अगर हम देखें और आंखों से हम किसी ऑब्जेक्ट को ठीक से देख पाए, फॉर दैट द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट और द इमेज at the eye must be more than 1 minute, right? Now, we cannot see any object or image which is placed at less than least distance of distinct vision. That means, if the object is placed at a distance which is less than 25 centimeter for a healthy eye, then although the object or the image is making angle greater than 1 minute, we will not be able to see it clearly. इसका मतलब दो कंडीशंस किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाने के लिए ज़रूरी है. नंबर 1, दैट द ऑब्जेक्ट और इमेज शुड मेक एन एंगल more than or greater than 1 minute at the eye, and the second one is that it should be placed at a distance greater than least distance of distinct vision, which is represented with alphabet D and which is 25 centimeter for a healthy eye. तो इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे नोट करेंगे और साथ में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की डेफिनेशन भी नोट करेंगे क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब सबसे पहले हम नेकेड आई से इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं. मान लो कि ये हमारी आईज पर अल्फा एंगल सबटेंड करता है. अब इस ऑब्जेक्ट को हम एक लेंस की हेल्प से, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे हम बोलेंगे, उसकी हेल्प से देखेंगे. उस ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत नज़दीक रखा, वेरी क्लोज टू लेंस, सच दैट इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन फोकस ऑफ द लेंस एंड ऑप्टिकल सेंटर सो दैट its magnified and virtual erect image is formed at least distance of distinct vision. तो जब ये उतने ही एंगल पर, उतने ही डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है इमेज जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. जो एंगल ऑब्जेक्ट नेकेड आई पे बना रहा है और जो इमेज आई पे बना रहा है. जो इमेज लेंस पर एंगल बना रहा है वो आईज इतनी क्लोज है लेंस के कि हम अपनी आईज पर बना हुआ एंगल भी मान सकते हैं उसको. तो लेट वी मेक इट बीटा एंड द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट एट नेकेड आई इज अल्फा. तो मैग्निफिकेशन क्या कहता है, दैट एंगल मेड सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, बीटा अपॉन अल्फा फर्स्ट, एंड देन सिंस दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, so these angles are also very small. So we can say that for a small angle, beta is approximately equal to 10 beta and alpha is approximately equal to 10 alpha. Now with help of the triangles made here, we will write the values of 10 beta and 10 alpha. So in this shaded triangle, 10 alpha can be written as perpendicular upon base H naught upon D. And in this triangle, we have this bigger shaded triangle and this is smaller one. So from the smaller one, I can write 10 beta as H naught upon UE, and from the bigger one we can write HI upon this D. So here I am taking this smaller one and I will write 10 beta equal to H naught upon base, that is UE. Substituting these two values here for 10 beta and 10 alpha, H naught will get cancelled and we will get a universal formula, capital D upon UE, where UE is distance of object from the eyepiece. This as the magnification formula for simple microscope. So the basic formula is D upon UE. But now we will transform this formula into more useful forms, because if we place the object very close to lens, F and optical center, इन दोनों के बीच में, तो इमेज जो बनती है इस डिस्टेंस को हम U को एडजस्ट करके इमेज को कैपिटल D यानी 25 सेंटीमीटर पे बना हुआ एडजस्ट कर सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर पे इमेज बने. लेकिन अगर इतनी क्लोज इमेज बनती है तो आंखें स्ट्रेस्ड पोजीशन में रहती हैं.
सिलेरी मसल्स जो हैं वो स्ट्रेस्ड रहती हैं। तो ये मैग्नीफिकेशन तो हमको बहुत ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे, और हमारी आंखें काफ़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन में होंगी। लेकिन हम मैग्नीफिकेशन एक और सिचुएशन में भी पा सकते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो और इसकी वजह से जो इमेज बने वो इन्फिनिटी पे बने। In this situation, when final image is formed at infinity, the eyes are relaxed. तो मैग्नीफिकेशन इन दोनों ही केसेस में मिलता है, पर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हमेशा तब मिलेगा जब फाइनल इमेज डी पर बने। लेकिन ये अनकंफर्टेबल पोजीशन है आइज के लिए। और मैग्नीफिकेशन मिनिमम तब मिलेगा जब इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज बने। मैग्नीफिकेशन मिलेगा लेकिन इसके कंपैरिजन में कम मिलेगा, लेकिन आइज इस समय रिलैक्स्ड पोजीशन में रहती हैं। तो हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि हमको किस सिचुएशन में कौन सी पोजीशन ऑफ इमेज चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ठीक से पॉइंट वाइज नोट करेंगे, और मेरे सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम मैग्नीफिकेशन के उन दो फॉर्मूलों के लिए चलते हैं जिनका डेरिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। मैग्नीफिकेशन का जो हमारा की फॉर्मूला रहेगा वो D/UE ही रहेगा, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के लिए, आईपीस के लिए हम फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे। और हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक व्हेन द फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड द सेकंड वन व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। नाउ सी केयरफुली, वेरी इजी डेरिवेशन, 1 focal length is equal to 1/v minus 1/u. Now we will substitute. Always remember, you have to substitute the values with sign in the formula. So here also we will substitute the values with sign. Final image at D. अब क्योंकि इंसिडेंट रे से ऑपोजिट जाना पड़ेगा अगर आप V कैलकुलेट करना चाहो, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना चाहो, तो आपको D माइनस साइन के साथ रखना पड़ेगा। और सेम लॉजिक रहेगा कि UE भी इंसिडेंट रे के ऑपोजिट आप मेजर करेंगे तो माइनस साइन के साथ रखेंगे। तो ये दोनों वैल्यू साइन के साथ रखते हैं। और यहाँ पर आप उन ईयर्स को देखिए जिनमें ये पूछे जा चुके हैं। इससे अलग भी ज़्यादा भी होंगे, पर मेरे को 2 ही बार ये डेरिवेशन मिला है, तो मैंने यहाँ पे 2 ही ईयर मेंशन किए हैं। तो अब हमने 1/FE इज इक्वल टू 1/-D माइनस 1/-UE। तो 1/-UE करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 1/UE इज इक्वल टू 1/FE प्लस 1/D। तो ये 1/UE की वैल्यू है, लेकिन मैग्नीफिकेशन में हमको पता है कि हमको D/UE चाहिए M के फॉर्मूले में, तो हम इसे D से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो D/UE इज इक्वल टू D/FE प्लस 1। तो D/UE की जगह हम M के फॉर्मूले में ये वैल्यू रख दें तो हमको एक फिजिबल फॉर्मूला मिलता है जो ईजिली न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा और काफ़ी यूज़ होगा। इसी तरह से अगर फाइनल इमेज इंस्टेड ऑफ D इन्फिनिटी पर बने तो सेम फॉर्मूला आईपीस के लिए हमने फोकल लेंथ का लिया, लेकिन अब की बार V की जगह इन्फिनिटी रखा, U की जगह -UE रखा। 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, लेकिन M में D/UE का एक्सप्रेशन है तो इसे D से मल्टीप्लाई किया, तो D/UE इज इक्वल टू D/FE। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है D/FE, while when the final image is at capital D 25 centimeter for healthy eye, then magnification is calculated using the formula 1 plus D/FE। इन दोनों फॉर्मूले को देखकर हमको ये पॉइंट मिलता है कि अगर आपको अच्छा मैग्नीफिकेशन चाहिए then focal length of convex lens should be as small as possible. So just keep on observing how we mention in our notes the important point in short highlighted. तो हमें काफ़ी कुछ नहीं लिखना रहता है, पर हर पॉइंट शॉर्ट में, ब्रीफ में और हाईलाइटेड हो जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आ जाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर। सिंपल माइक्रोस्कोप की लिमिटेशन है कि वो सिंगल लेंस की हेल्प से एक लिमिटेड मैग्नीफाइड इमेज ही प्रोड्यूस कर सकता है। सो इंस्टेड ऑफ सिंगल लेंस वी यूज 2 lenses, convex lenses. The lens which is close to object, we will say it objective. And lens which is close to eye, we will call it eyepiece. Now here, the magnification produced by the objective, that will be the first magnification, and the image magnified by the objective will again be magnified by the eyepiece. So we get a good magnification using 2 lenses, and the microscope formed will be known as compound microscope. Now let us understand the ray diagram of compound microscope. The first thing which you should notice is that aperture of objective is smaller than aperture of eyepiece. एक और important point है कि जो object है वो लेंस की फोकल लेंथ के, फोकस के बहुत नज़दीक रखा जाता है मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्टेंस को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो पहली इमेज बनती है वो लेंस से इतनी डिस्टेंस पर रहे कि उसकी जो वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने।
अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम ऐसे एडजस्ट करें कि ये इंटरमीडिएट इमेज फोकस ऑफ आईपीस पे बने, तो यही फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनने लगेगी। ये जो रे डायग्राम है जिसमें कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, ये स्ट्रेस्ड आई स्टेट की डायग्राम है। और जब इमेज फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, तब ये जो इंटरमीडिएट इमेज है ये एफ ई पे रखी होगी और वो हमारी रिलैक्स्ड आई सिचुएशन होगी। हम दोनों केसेस को जल्दी से देखते हैं। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ओवर द आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई, दैट इज beta upon alpha. Since beta and alpha are very small, so beta can be replaced by tan beta and alpha can be replaced by tan alpha. Now come to the value of tan beta. tan beta की वैल्यू को हम लोग इस शेडेड ट्राइंगल से देखेंगे। जो आईज हैं वो आई पीस के बहुत पास होती हैं। जो फाइनल इमेज एंगल आई पीस पे बना रही है वही आंख पे बना हुआ मान सकते हैं। तो tan बीटा की वैल्यू हम इस शेडेड रीजन पे ट्राइंगल से देखते हैं। इस शेडेड ट्राइंगल से tan बीटा की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच आई डैश अपॉन यू ई विथ माइनस साइन। ठीक, अब tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो, tan अल्फा की वैल्यू एच ओ डिवाइडेड बाई डी। हम यहाँ दोनों ही जगह पर या तो माइनस साइन रखें और या हम दोनों ही जगह पर माइनस साइन को हटा देते हैं क्योंकि फाइनली कैंसिल हो जाएगा। और अब देखो हमको जो फॉर्मूला मिलता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू कैपिटल डी अपॉन यू ई। तो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक्चुअली मैग्निफिकेशन डन बाय ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन डन बाय आईपीस है। अब ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों के मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लिकेशन से हमें रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन मिल रहा है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करेंगे। अब हम इसको ज़्यादा फिजिबल फॉर्म में ले आएंगे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। इन दोनों शेडेड ट्राइंगल्स को देखो जो पिंक कलर से शेडेड है। यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और इसलिए एच आई डैश अपॉन एच ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ। तो एच आई डैश अपॉन एच ओ की जगह हम लोग वी ओ अपॉन यू ओ ये रिप्लेस कर देते हैं। तो जो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव कर रहा है, अब उसका फॉर्मूला हो गया v ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई u ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें से जो u की वैल्यू है वो निगेटिव आएगी जबकि v की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो ये फॉर्मूला हमको फाइनली मैग्निफिकेशन का मिल गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। अब फिर से हमारे पास मैग्निफिकेशन की दो स्टेट हैं, रिलैक्स्ड आई स्टेट और स्ट्रेस्ड आई स्टेट। स्ट्रेस्ड आई स्टेट में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा, इमेज कैपिटल डी पर रखी होगी, और रिलैक्स्ड आई स्टेट में मैग्निफिकेशन सबसे कम मिलेगा और जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे रखी होगी। तो जैसे हमने पिछले केस में किया था कि हमने आईपीस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज किया था। तो आईपीस के लिए 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, वी माइनस डी और यू माइनस यू ई। ये दोनों वैल्यूज यहाँ से उठाकर फोकल लेंथ के फॉर्मूले में रख देते हैं आईपीस के। तो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई। वैल्यू सब्सटीट्यूट करा तो 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। इसके बाद हमें पता है कि हमको डी अपॉन यू ई चाहिए, तो हमने यहाँ पर 1 अपॉन यू ई इक्वल टू 1 अपॉन यू ई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी में डी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डी अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब ये वैल्यू उठाकर हमने d अपॉन यू ई की जगह रख दी, तो हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया जो हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही हो। सिमिलरली अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही हो तो हम फिर से फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे। इस बार वी ई की जगह इन्फिनिटी रख देंगे। तो 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। डी से मल्टीप्लाई किया तो d अपॉन यू ई इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई। इसकी जगह पर ये ज़्यादा फिजिबल फॉर्मूला या फॉर्म रखने पर हमको मैग्निफिकेशन का ये दूसरा रिलैक्स्ड आई के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये कितना इंपॉर्टेंट है इसको ये देखो कि कितनी बार पूछा गया है। इतनी बार पूछा गया है इन ईयर्स में और पिछले काफ़ी समय से नहीं पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से इस बार सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम में ये काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस टॉपिक से बहुत बार रे डायग्राम पूछा गया है, फिर मैग्निफिकेशन का ये डेरिवेशन पूछा गया है और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं। तो इससे एक क्वेश्चन, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 3 to 5 मार्क्स का अब तक हर साल ज़रूर पूछा गया है।
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिससे कि हमारे न्यूमेरिकल के पॉइंट्स भी क्लियर हो जाए। ट्यूब लेंथ न्यूमेरिकल में जरूर पूछी जाती है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ। ठीक है, अब अगर कैपिटल डी पर फाइनल इमेज बन रही है तो इमेज और ऑब्जेक्टिव के बीच का जो डिस्टेंस है वो वीओ, और ये जब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा इंटरमीडिएट इमेज, तो उसके और आईपीस के बीच का डिस्टेंस यूई, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया वीओ प्लस यूई। लेकिन अगर इमेज फाइनल इन्फिनिटी पे बन रही है तो हमें पता है कि जो इंटरमीडिएट इमेज है ये फोकस पर बनेगी आईपीस के, तो उस समय ट्यूब लेंथ हो जाएगी वीओ प्लस एफ ई। तो ट्यूब लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना, वीओ प्लस यूई जब फाइनल इमेज एट डी बने और वीओ प्लस एफ ई जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इंक्रीज करना चाहें देन दिस वीओ शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। तो उसके लिए हमको यूओ को बहुत कम रखना होगा, यानी ऑब्जेक्ट को लेंस के ऑब्जेक्टिव के जितना पास रख सकते हैं उतना, पर फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव उससे दूर रखना होगा, नहीं तो इमेज वर्चुअल बनने लगेगी। तो इसीलिए हम मैग्निफिकेशन अच्छा मिले इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव के बहुत पास रखते हैं लेकिन एफ ओ से थोड़ा दूर। देन इंक्रीज वीओ का तब भी होता है जब आईपीस की फोकल लेंथ बहुत छोटी हो, तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो, इसके लिए हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के बहुत पास रखते हैं, इतनी पास कि वो ऑब्जेक्टिव के फोकस के बहुत नज़दीक होता है, और जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ जितनी छोटी हो सकती है उतनी छोटी लेते हैं, सो दैट वी कैन गेट अ गुड मैग्निफिकेशन फ्रॉम द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Now in 2014 one question was asked, what is the advantage of compound microscope over simple microscope? So compound microscope magnifies much more than simple microscope because here magnification of object is multiplication of magnification done by objective and magnification done by eyepiece. Secondly, lens used in compound microscope is an achromatic combination, so image formed is free from spherical and chromatic aberration. इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ऑफ स्मॉल एपर्चर वाई, एज ऑब्जेक्ट viewed is very very small and it is placed very close to objective. So if aperture of objective is large, then the light ray entering the objective will spread and the image formed will be less bright. For that reason we take objective of small aperture. And now finally let us come to telescope. Telescope helps us to see distant object clearly. अब यहाँ पर दो टाइप ऑफ टेलीस्कोप है, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली व्हेन ऑब्जेक्ट मेक्स एन एंगल ऑन द आई मोर देन 1 डिग्री। इसके अलावा हमको ये भी पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को या इमेज को क्लियरली देखना है तो जो ऑब्जेक्ट है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से थोड़ा दूर रखा होना चाहिए। तो दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हुए कि जो इमेज या ऑब्जेक्ट है वो डी से दूर हो और साथ में जो एंगल बने वो 1 मिनट से ज़्यादा हो, माइक्रोस्कोप क्या करता है कि वो बहुत छोटी ऑब्जेक्ट की साइज को मैग्नीफाई करता है, इसके लिए वो इमेज को मैग्नीफाई करता है। लेकिन टेलीस्कोप को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना है, वो ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करने की जगह वो ऑब्जेक्ट की इमेज को आंख के नज़दीक ले आता है, और इस तरीके से वो जो एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ओवर द आई है उसको बढ़ाता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ दूर रखी है तो वो आंख पे जो एंगल सबटेंड करती है वो छोटा होता है, जबकि वही ऑब्जेक्ट अगर आंख के पास आ जाए तो बड़ा एंगल सबटेंड करने लगता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की वर्किंग में। माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करता है और इस तरीके से जो एंगल मेड बाय इमेज ओवर द आई है उसे इंक्रीज करता है, जबकि टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट की इमेज को आंख के नज़दीक लेकर आता है और इस तरीके से जो एंगल बन रहा है आंख पर उसे बड़ा करता है। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेलीस्कोप। एक लार्ज एपर्चर का ऑब्जेक्टिव जबकि छोटे एपर्चर का रिलेटिवली आईपीस। पैरेलल रेस को जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने फोकस पर इमेज फॉर्म करता है एफओ पर, लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं तो ये इमेज इसके फोकस और इस लेंस के बीच में बन सकती है, इस तरीके से कि जो फाइनल इमेज है वो डी पे बने, या इस इमेज को हम इस लेंस के फोकस पे बना सकते हैं जिससे फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने। तो पहला केस लेते हैं जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, और इसके लिए एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि रैक एंड पिनियन मेथड से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम एडजस्ट करते हैं, सो दैट इंटरमीडिएट इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस ऑफ दिस लेंस एंड दिस लेंस इटसेल्फ। तो अब हम सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो देखते हैं मैग्निफिकेशन का, विच इज एंगल मेड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। अब बीटा और अल्फा क्योंकि बहुत छोटे हैं और बहुत दूर से आ रही रेज लेंसेज पर बहुत छोटा एंगल बना रही है,
तो हम बीटा और अल्फा को tan बीटा और tan अल्फा कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इन्फिनिटी से आ रही रेज के कंपैरिजन में डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई और डिस्टेंस बिटवीन आई पीस एंड द आई इज नेग्लिजिबल। तो हम क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव पर एंगल बन रहा है, एक्चुअली ये डिस्टेंस अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो हम मान सकते हैं कि सेम एंगल आई पर बन रहा है बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। तो बाय द ऑब्जेक्ट एंगल मेड ऑन द ऑब्जेक्टिव इज अल्फा, सो दिस एंगल which we will have value of this angle through this triangle, this angle is made at the eye also, the same angle. And beta is angle made by final image over the eyepiece or we can say over the eye. तो जो बीटा की वैल्यू है वो हम येलो शेडेड ट्राइंगल से निकालेंगे और अल्फा की वैल्यू ग्रीन शेडेड ट्राइंगल से। तो देखो tan अल्फा इज इक्वल टू एच आई डैश अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, वाइल tan बीटा इज एच आई डैश अपॉन माइनस यू ई। ये दोनों वैल्यूज मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में tan बीटा और tan अल्फा की जगह रखते हैं। तो एच आई डैश कैंसिल हो जाएगा और जो फॉर्मूला हमको एक बेसिक फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। अब फिर से दो केसेस ले लेंगे, एक जब डी पर बन रही है फाइनल इमेज और दूसरी जब इन्फिनिटी पर बन रही है। तो जब डी पर बन रही है फाइनल इमेज तो हमने पहले बेसिक फॉर्मूला लिखा और उसके बाद आई पीस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला। अब वी की जगह हम रख देंगे माइनस डी और u की जगह पर माइनस यू ई। तो 1 अपॉन यू ई कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। तो 1 अपॉन यू की वैल्यू की जगह हमको तो एफ ओ अपॉन यू ई चाहिए, जो कि हमारा मेन मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन है। तो हमने पूरी इक्वेशन को एफ ओ से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद एफ ओ और 1 अपॉन एफ ई दोनों को कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड से। एफ ओ कॉमन लिया और अब 1 अपॉन एफ ई कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो हमें जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा वो मिल जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई विद माइनस साइन 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। इसके अलावा जो ट्यूब की लेंथ है टेलीस्कोप में वो भी देख सकते हैं, एफ ओ प्लस यू ई जब डी डिस्टेंस पर फाइनल इमेज बनती है और एफ ओ प्लस एफ ई जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। अब फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पर बन रही है तो भी हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को देखें तो फिर से हम आई पीस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे। 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई। फिर v की जगह इन्फिनिटी रखा और u की जगह माइनस यू ई। तो 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। सो मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद एफ ओ अपॉन यू ई इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। तो एफ ओ अपॉन यू ई की जगह ये फॉर्मूला रखेंगे तो जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला माइनस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और लेंथ ऑफ द ट्यूब हम बात कर चुके हैं, दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ को ऐड कर देने पर हमको ट्यूब लेंथ मिल जाएगी। In reflecting telescope, there is a parabolic concave mirror and parallel rays from distant object incident over this paraboloidal concave mirror. We call it primary mirror. ये मिरर इन पैरेलल रेस को अपनी फोकस पर दैट इज I1 पे फोकस करना चाहता है, लेकिन इसके पाथ में रेस के एक प्लेन मिरर रखा हुआ है एट 45 डिग्री फ्रॉम दी एक्सिस। ये प्लेन मिरर के लिए ये जो वर्चुअल इमेज है जो बनने नहीं पाई वो इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और इसकी इमेज को प्लेन मिरर इस पॉइंट पर फोकस कर देता है जो कि इस लेंस का आई पीस का फोकस है। तो लेंस इसकी इमेज की इमेज को इन्फिनिटी पर बनाता है, यानी पैरेलल कर देता है रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का है। मेरे नोट्स के पीडीएफ फॉर्म को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि वी नीड अ बिग एपर्चर लेंस इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, लेकिन बड़े एपर्चर का लेंस बनाना, फ्लॉलेस लेंस बनाना बहुत मुश्किल है। तो जो मिरर है वो बड़े एपर्चर का ईजिली बनवाया जा सकता है। इसलिए सबसे पहली बात कि हमको लार्ज एपर्चर का लेंस बनाने के कंपैरिजन में लार्ज एपर्चर का मिरर आसानी से बनाने को मिलता है, इसलिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम रिफ्रैक्टिंग पर प्रेफर करना चाहेंगे। दूसरा, सिंस रेज गो थ्रू द लेंस सो दे सफर रिफ्रैक्शन एंड एज अ रिजल्ट द इमेज फॉर्म्ड हैज स्फेरिकल एंड क्रोमैटिक एबरेशन, while in case of reflecting telescope we don't have refraction through mirror। तो रेस को मिरर के ग्लास में एंटर नहीं करना पड़ता, इसलिए अगर हम पैराबोलॉइडल कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं तो हमको जो इमेज मिलती है वो स्फेरिकल एबरेशन और क्रोमैटिक एबरेशन दोनों से फ्री होती है। तो ये दो एडवांटेज हैं और इसके अलावा एक छोटा एडवांटेज ये भी है
कि मिरर को फ्लॉलेस बनाना इकोनॉमिक भी है और ईजी भी है इन कंपैरिजन टू अ लेंस ऑफ large aperture. So we have noted down all the points which are advantage of reflecting telescope and also disadvantage of refracting type telescope.